Hello students, today we are going to discuss midpoint circle algorithm. In this we will see what is midpoint circle algorithm and how can we use midpoint circle algorithm to solve a numerical. Here you can see that the circle is divided into 8 equal octants, okay, and each octant is separated by 45 degree. So the whole circle is 360 degree divided by 45. It means there will be 8 octants, and these octants are symmetrical to one another. That is, if you find a point xy in this octant, we can find the corresponding point in each of the 7 octants. जैसे in this octant the point is xy, तो इस octant में corresponding point होगा yx. इस octant में the corresponding point होगा minus yx. In this octant it will be minus xy, so on. So therefore, if we find a point in one octant, we can find the corresponding to that point in all the 7 octants. And this is the logic that will be used in midpoint circle algorithm. That is, हमें करना क्या है कि हमें एक octant में पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग बाय सिमेट्री वी कैन फाइंड द पिक्सल कोऑर्डिनेट्स इन ऑल द 7 octants. Okay, so if xy is representing a pixel in this octant, the yx is representing the pixel corresponding to xy in this octant. Minus yx is representing a pixel in this octant corresponding to xy. Okay, so if we can draw a circle in one octant, so by symmetry we can draw the whole circle, and this concept is used in midpoint circle algorithm. Now, what is the equation of circle? About origin, x square plus y square is equal to r square. Then we can define the circle function about origin as x square plus y square minus r square. Okay. Now, if you have to check whether any coordinate, any point is inside, outside or on the circle, we can use this circle function. If the value of the circle function is less than 0, it means the point is inside the circle. If it is equal to 0, the point is on the circle boundary, and it is greater than 0, it means the point is outside the circle. So using this circle function, we can decide whether the point is inside, outside or on the boundary of the circle. Now let's see how the midpoint circle algorithm works. Okay. Now let us suppose we have find a pixel coordinate at xk and yk. xk yk पे हम एक पिक्सल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट पिक्सल. ओके, वी आर इंक्रीमेंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस. इट मीन्स दिस इज द एक्स के पॉइंट इज देयर, द नेक्स्ट x coordinate will be xk plus 1, and we have to find the corresponding y coordinate, and this red point is here. The y coordinate is something in between these two pixels. Now the objective is कि इन दोनों पिक्सल्स में से कौन सा पिक्सल क्लोज है टू द पिक्सल x plus 1 xk plus 1 y पे. Okay, so we have to identify which pixel has to be turned up, either xk plus 1 yk minus 1 or xk plus 1 yk, because the circle is passing in between the pixels. So we have to find which pixel is closer to the circle. Okay, now what we are doing here, we are finding the circle function at the midpoint of these two pixels. ये जो पिक्सल्स हैं जिनको हमें चेक करना है कि विच इज क्लोजर टू द सर्किल, हम क्या करेंगे, इन दोनों पिक्सल्स का जो मिड पॉइंट है उसके अबाउट सर्किल फंक्शन कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो व्हाट इज द मिड पॉइंट इज देयर, दिस इज xk plus 1 एंड दिस इज xk plus 1. दिस पॉइंट जो मिड पॉइंट होगा उसका भी कोऑर्डिनेट xk plus 1 होगा. दिस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट इज yk minus 1 and this pixel coordinate is yk. The midpoint is yk minus 1 by 2. So we have to find the circle function at xk plus 1 comma yk minus 1 by 2. Now we are applying the circle function here, and this f, the x coordinate is xk plus 1 and y coordinate is yk minus 1 by 2, and this is the equation is there, and we are calling this circle function as pk. This is a decision parameter, okay, at kth step. This is equation number 1. So here we have find
the circle function about the midpoint of these two pixels. Okay. Now ये जो सर्किल मिड पॉइंट है, ये अगर सर्किल के अंदर है तो द सर्किल फंक्शन विल बी लेस देन 0, इट मीन्स पी के विल बी लेस देन 0. ओके, तो अगर पी के लेस देन 0 है, इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है इट इज इनसाइड द सर्किल. पी के इक्वल टू 0 है, इट मीन्स द मिड पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल. एंड पी के ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स द मिड पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल. ओके, नाउ द सेम वे हमने पी के निकाला. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पी के प्लस 1 यूजिंग द सेम सर्किल फंक्शन. तो नाउ द एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के प्लस 1 हो जाएगा. ओके, जहाँ के था वहाँ पे के प्लस 1 करना है सिंपल. वहाँ वाई के था तो इट बिकम्स वाई के प्लस 1. एक्स के था तो दिस बिकम्स एक्स के प्लस 1. एंड दिस इज द सर्किल फंक्शन एंड वी आर कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर subtracting equation number 1 from equation number 2 and we are getting this equation. Okay, तो by simplify करने के बाद we get this equation. That is, this equation is जहाँ पे हम pk प्लस 1 को pk के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो pk जो है आपका डिसीजन पैरामीटर है एट kth स्टेप, pk प्लस 1 है डिसीजन पैरामीटर एट k प्लस 1 स्टेप. ओके, तो नाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड pk प्लस 1 in terms of pk. Okay, now what will happen, we have to see the value of pk. If pk is less than 0 or if pk is greater than or equal to 0. If pk is less than 0, so what is the next pixel's y coordinate? It will be, the next pixel's y coordinate will be yk. And if pk is greater than 0, the next pixel will be yk minus 1. Okay, so we have to calculate pk plus 1 for the case if pk is less than 0. This will comes out to be this. In this equation, you have to put yk in place of yk plus 1. Okay, so if you put here yk in place of yk plus 1, this becomes 0 and this becomes also 0. Okay, then this whole equation now becomes pk plus 1 is equal to pk plus 2xk plus 1 plus 1. This equation comes out when pk is less than 0. In that case, the next pixel y coordinate will be yk. Now if the pk is greater than or equal to 0, the next coordinate y coordinate of the pixel that to be plot is yk minus 1. तो इक्वेशन नंबर 3 में yk प्लस 1 की जगह अगर हम yk माइनस 1 पुट करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, तो pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 2xk प्लस 1 minus 2yk plus 1 and we are calling this equation number 5. Here we have got two equations, one regarding if pk is less than 0 and one regarding when pk is greater than or equal to 0. Okay, now we have to find the initial decision parameter. जो पहला डिसीजन पैरामीटर होगा we call it initial decision parameter, और वो हम फाइंड आउट करेंगे एट स्टार्ट पोजीशन. ओके, द स्टार्ट पोजीशन इज x0 y0. ओके, दैट इज द सेंटर. ओके, क्योंकि हम सर्किल जो ड्रॉ कर रहे हैं इट इज अबाउट ओरिजिन, तो x कोऑर्डिनेट हमने 0 लिया है और y कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल. एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर और वी आर यूजिंग द सर्किल फंक्शन, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. उसमें हम x की जगह 0, y की जगह r, इफ यू पुट दैट देन वी गेट p0 इज इक्वल टू 5/4 माइनस r. ओके, नाउ दिस 5/4 माइनस r को हम जो 5/4 है इसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बाई 1, तो दिस बिकम्स 1 माइनस r. वाई वी आर डूइंग अप्रोक्सीमेशन बिकॉज वी वांट ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ इंटीजर फॉर्म. जितने भी कैलकुलेशन हमें करने हैं वो सारे इंटीजर पे हो सकें. दैट्स वाई वी आर अप्रोक्सीमेटिंग 5/4. अदरवाइज 5/4 इज ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन. तो इंटीजर ऑपरेशंस आर मच फास्टर देन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एंड वी वांट all the calculations to be of integer form. That's why we are approximating 5/4 as 1. So then 5/4 minus r now becomes 1 minus r. So initial decision parameter p0 is now becomes 1 minus r. Okay, so these are the decision parameters that are to be used in midpoint circle algorithm to find the next pixel that is to be plot. Okay, now this is the midpoint circle algorithm is there. You have to input a radius r of the circle and you have to center of the circle is xc yc
and obtain the first point on the circumference of circle on the origin as x0, y0, 0, r. तो हमें जो इनपुट मिलेगा वो रेडियस है और द सेंटर ऑफ द सर्किल है। पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जब सर्किल बनाएंगे सबसे पहले तो वो बनाएंगे ओरिजिन के अबाउट। ओके, तो वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द सर्किल अबाउट ओरिजिन, नॉट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, जब हम ओरिजिन के अबाउट सर्किल क्रिएट कर देंगे तब उस सर्किल को हम इस तरीके से अपडेट करेंगे द सर्किल जो हो वो इस सेंटर के अबाउट ड्रॉ हो जाए। ओके, तो सेंटर ऑफ द सर्किल इन केस ऑफ ओरिजिन, ओके, तो x0 क्या होगा, आपका 0 होगा, और जो फर्स्ट ऑक्टेंट ले रहे हैं उसका जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू रेडियस, तो y0 इज योर r। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर वी हैव p0 1 माइनस r, ये कैलकुलेट करना है, एंड आफ्टरवर्ड वी हैव टू कैलकुलेट pk। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आपको निकालना है, वो डिपेंड करेगा कि pk की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो देयर आर टू सिचुएशंस एट ईच x स्टार्टिंग फ्रॉम k इक्वल टू 0, you have to check whether the pk is less than 0। if pk less than 0 है तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो होगा xk प्लस 1 yk। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि हम जो सैम्पलिंग कर रहे हैं वो अलॉन्ग x एक्सिस कर रहे हैं। ओके, तो x इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड, y की पुरानी वैल्यू यूज करनी है या y की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, ये डिसाइड होगा दैट ऑन द साइन ऑफ pk। इफ pk इज लेस देन 0 तो x coordinate will be xk plus 1 and there will be no change in the y coordinate, और next pk plus 1 will be calculated using the formula pk plus 1 is equal to pk plus 2 xk plus 1 plus 1। otherwise that is if pk is greater than or equal to 0 है तो जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे वो xk plus 1 और yk minus 1 प्लॉट करेंगे, और pk plus 1 कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू pk plus 2xk plus 1 plus 1 minus 2yk plus 1। ओके, इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द डिसीजन पैरामीटर्स। यहाँ पे देखेंगे 2xk plus 1 क्या है, तो xk plus 1 होता है xk plus 1, यानी जो पुराना xk था उसमें एक जोड़ेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 2xk plus 1 and this becomes 2xk plus 2। okay, now after that we have drawn the circle about the origin। okay, तो हमने क्या किया है कि सिर्फ जो अब तक सर्किल ड्रॉ किया है अबाउट ओरिजिन वो सिर्फ एक ऑक्टेंट में ही ड्रॉ किया है। नाउ अब हमें जो रिमेनिंग 7 ऑक्टेंट्स हैं उसमें भी उस सर्किल को ड्रॉ करना है यूजिंग द सिमेट्री पॉइंट्स जो हमने अभी इनिशियली देखा था। तो डिटरमाइन सिमेट्री पॉइंट्स इन द अदर 7 ऑक्टेंट्स। तो जैसे हमने देखा था कि एक्स वाई का आपने फाइंड आउट किया है, तो नेक्स्ट ऑक्टेंट में वो वाई एक्स होगा, फिर अगले ऑक्टेंट में माइनस वाई एक्स होगा, ठीक है, उसके अगले ऑक्टेंट में माइनस एक्स वाई होगा एंड सो ऑन। तो आपने एक ऑक्टेंट में हमने जो सर्किट ड्रॉ किया है, जो पिक्सल्स फाइंड आउट किए हैं, उससे करस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड सिमेट्रिक पिक्सल पॉइंट्स इन अदर 7 ऑक्टेंट्स। ओके, आफ्टर स्टेप नंबर 5 वी हैव ड्रॉन और क्रिएटेड द सर्किल अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 ओवर होने के बाद जो हमने सर्किल ड्रॉ की है टिल नाउ दैट इज अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका 0 0, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्किल इज द ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ द सर्किल इज 0 0, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ द सर्किल एट सेंटर एक्स सी वाई सी, इसके अबाउट हमें क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जितने भी पिक्सल पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए हैं इन ऑल द 8 ऑक्टेंट्स, हर एक पिक्सल पॉइंट के जो आपने x निकाला है उसमें xc ऐड करना है, और जो y कोऑर्डिनेट निकालना है उसमें yc ऐड कर देंगे। अब जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स के अबाउट जब सर्किल ड्रॉ होगा दैट सर्किल इज अबाउट द सेंटर xc yc होगा। ओके, एंड देन यू हैव टू रिपीट स्टेप 3 to 5 अंटिल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये जो स्टेप नंबर 3 से 5 तक है, ओके, व्हाट इज जहाँ पे हम डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, कब तक कैलकुलेट करते रहेंगे, जब तक x की वैल्यू y से ग्रेटर और इक्वल है तब तक करेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब x की वैल्यू y से छोटी हो जाएगी, एट दैट पॉइंट वी हैव टू स्टॉप कैलकुलेटिंग द डिसीजन पैरामीटर्स। इट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड द ऑल द पिक्सल पॉइंट्स इन वन ऑक्टेंट। ओके, दिस इज द मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। लेट्स सी an example where we have given a circle with radius 10, okay, and we have to draw a circle about the origin,
ओके, तो हमें जो आपका ओरिजिन है, सेंटर ऑफ द सर्किल है, इट इज 0 0। ओके, नाउ वी हैव टू, एक कोऑर्डिनेट में हमें सर्किल ड्रॉ करनी है और द कोऑर्डिनेट इज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y, दिस इज द कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होगा? ओके, तो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर p0 1 माइनस r, तो 1 माइनस रेडियस 10, इट बिकम्स -9। ओके, तो k 0 पे तो pk है, p0 इज योर -9। ओके, सेंटर क्या है आपका? x0 y0, that is 0 r। okay, this is the initial center, that is 0 10। okay, now k is equal to 0, we have to see that p0 is less than 0। तो जब भी pk less than 0 होगा तो there will be no change in the y coordinate। ये याद रखिएगा कि y coordinate में कोई चेंज नहीं होगा। अगर pk greater than 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा तो y coordinate जो होगा वो डिक्रीमेंट होगा बाई 1। ओके, यहाँ पे माइनस करना है और x हर बार इंक्रीमेंट होगा। तो हेयर p0 इज लेस देन 0 है, इट मीन द नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? x k प्लस 1 y k। तो k की वैल्यू कितनी है? यहाँ 0 है, तो x0 प्लस 1 y0, तो x0 आपका 0 है। ठीक है, तो x0 प्लस 1 बिकम्स 1, y0 इज 10, इट रिमेन्स 10, दिस बिकम्स 110। ओके, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट pk प्लस 1। okay, तो pk plus 1 now becomes p1 because k is 0, this pk is p0 to xk plus 1, k is 0। तो xk plus 1 क्या होता है? xk की जो वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करना है, दैट इज क्योंकि x हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो xk plus 1 इज इक्वल टू x सबस्क्रिप्ट k plus 1, दैट इज x0 plus 1 एंड प्लस 1। तो x0 आपका कितना है? x0 इज 0 प्लस 1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज प्लस 1, and p0 is -1, this becomes -6। So we have calculated p1 as -6। okay, now the same way we have to calculate k is equal to 1। the p1 we have already calculated in the previous slide and this is what? -6 आया था। तो p1 अभी भी लेस देन 0 है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? xk प्लस 1 yk। ओके, तो xk प्लस 1 yk होगा, तो दिस बिकम्स, सॉरी यहाँ टर्म लिखा हुआ है, दिस इज योर 2। ओके, ये 1 है, इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, इट बिकम्स 2, और yk में कोई चेंज नहीं होगा, तो yk आपका था 10, इट रिमेन्स 10, तो दिस बिकम्स 2/10। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मिस्टेक है, 12 की जगह 2 होगा, तो दिस बिकम्स 2/10 बिकॉज p1 इज लेस देन 0, देयर विल बी नो चेंज इन द y कोऑर्डिनेट, एंड pk प्लस 1 अगेन यूजिंग द दैट फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड -1। ओके, नाउ k इज इक्वल टू 2 अगेन निकाल देंगे, तो हमने यहाँ p2 निकाल दिया है, देखिए -1 है, तो k इज इक्वल टू 2 यानी p2 अभी लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो y के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, x इंक्रीमेंट होगा, तो इनिशियली क्या था? 210 था, इट नाउ बिकम्स x इंक्रीमेंटेड बाई 1 एंड देयर इज नो चेंज इन y, इट बिकम्स 310, देयर इज नो चेंज। ओके, एंड नाउ द सेम pk plus 1 formula will be applied and we get p3 as equal to 6। okay, now we have to calculate k is equal to 3। now here 3 क्या है? p3 is 6 is there, it is positive is there, greater than 0 है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में क्या होगा? एक डिक्रीमेंट होगा, तो y now becomes yk -1। ओके, तो यहाँ पे क्या था? 310 था, तो y क्या हो जाएगा? 10 की जगह 9 हो जाएगा, और x इंक्रीमेंट होगा बाई 1। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज टू बी प्लॉटेड विल बी 4/9 and the formula that will be used for calculating pk plus 1 is this one, that is you can see in the algorithm, when pk is greater than equal to 0 we have to use this formula, and what we have calculated p4 as -3। okay, after that we have to calculate for k is equal to 4, so we have again find that p4 is -3, less than 0 is there, so there will be no change in the y coordinate। okay, तो यहाँ पे क्या 5 9 था, दिस बिकम्स 4 9 था, दिस बिकम्स 5 9। यू कैन सी दैट x इंक्रीमेंट हुआ है बाई 1 एंड देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, एंड वी हैव कैलकुलेटेड pk प्लस 1 दैट इज p5 एज +8, दैट इज +8। ओके, द सेम वे वी हैव कैलकुलेटेड p5, कैलकुलेट करना है, p5 आपका आया है 5 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा? y की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा, तो 5 9 था, अभी हो जाएगा 5 बिकम्स 6 एंड 9 बिकम्स
8. So P5 is greater than 0, so there will be have to decrement the value of y by 1. So this becomes 9 to 8. And now we have calculated P6, and this comes out to be 5. Okay. Now we have P6 is there. So you can see that P6 greater than 0 is there. Okay. Again, what we have to do, we have to decrement the value of y by 1. तो y कितना था 8, this becomes 7, x 6 था, it becomes 7, now it becomes 7 7, and now we have calculated P7 as, okay, this is your 6. Now what we have to do, we have to stop here. Why? Because ये जो पूरा प्रोसेस है डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करने का तब तक करना जब तक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है. तो यहाँ पे क्या है x और y, यू कैन सी दैट 7 7 है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे, नेक्स्ट फिक्सन पोजीशन निकालेंगे, तो x बिकम्स 8 क्योंकि x हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है. y की वैल्यू या तो पुरानी वैल्यू यूज होगी दैट इज 7, या एक डिक्रीमेंट होगी, और डिक्रीमेंट होती तो इट बिकम्स 6. इन बोथ केसेस the value of x now becomes greater than value of y coordinate. Okay, and this condition x greater than equal to y उस केस में फेल हो जाएगा. तो हमें ये पूरा प्रोसेस करते रहना है जब तक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है. इस पोजीशन के बाद जब आप p ये बिकम 7, तो वैल्यू ऑफ x जो होगा वो आपका 8 होगा. क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वैल्यू ऑफ y बिकम्स 6, तो 8 बिकम्स 8 6, एंड द वैल्यू ऑफ x नाउ बिकम्स ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ y. We have to stop here since this condition fails. Now we have found the pixel coordinates in one octant. You can see that these are the pixel coordinates in only one octant. Okay, and now what we can do, using that you can find the pixel coordinates in all the 7 remaining octants, and after getting that you are able to draw the whole circle. Okay, तो दिस सर्किल जो अभी हमने ड्रॉ किया है दैट इज अबाउट द ओरिजिन. ओके, नाउ जो भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है ये दो तरीके से पूछा जाता है. या तो आपको सर्किल ओरिजिन के अबाउट ड्रॉ करनी है, या आपको एक सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा. तो ओरिजिन के अबाउट के लिए ये प्रोसेस था, और अगर आपको सेंटर मेंशन किया जा रहा है दैट इज इन दैट केस कि सेंटर आपको गिवन है कि 5 6 के अबाउट सर्किल ड्रॉ करना है. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन. मतलब सबसे पहले आपको सर्किल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अबाउट द ओरिजिन. आफ्टर डूइंग दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सर्किल कोऑर्डिनेट्स और पिक्सल कोऑर्डिनेट्स अबाउट दिस सेंटर. तो यहाँ तक ये पोर्शन जो देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज द पिक्सल कोऑर्डिनेट्स अबाउट द ओरिजिन, and we have to find the pixel coordinates about the center 5 6. So what we have to do, we have to add 5 to all the x coordinate values, and 6 that we have to add the all y coordinate values. इसमें 1 में 5 ऐड करेंगे it becomes 6, और 10 में 6 ऐड करेंगे it becomes 16. 2 में 5 ऐड करेंगे it becomes 7, और 10 में 6 ऐड करेंगे it becomes 16. In this way now we have find these pixel coordinates that are about the center 5 6, and these are the pixel coordinates that are about the origin. तो इन पिक्सल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो आप जो सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं वो अबाउट ओरिजिन होगा. इन पिक्सल कोऑर्डिनेट्स को यूज करके सर्किल ड्रॉ करेंगे तो जो सर्किल ड्रॉ होगी उसका सेंटर 5 6 होगा. ओके, तो इन बोथ केस यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द पिक्सल कोऑर्डिनेट्स और ड्रॉ द सर्किल अबाउट द ओरिजिन. दोनों केस में ही आपको पहले सर्किल जो क्रिएट करनी है वो अबाउट ओरिजिन ही करनी होगी. उसके बाद ही आप इसी सेंटर के अबाउट आप सर्किल को ड्रॉ कर पाएंगे. ओके, तो होप you will be able to understand what is a midpoint circle algorithm and how it can be used to draw a circle. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.